نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون۔ حضرات محترم، میں نے ابھی جس آیت کریمہ کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اس کا سیدھا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے ولیوں کو نہ ہی کوئی ڈر ہے اور نہ ہی کوئی حزن و ملال ہے۔ حضرات محترم، میں نے جس آیت کریمہ کا تلاوت کرنے کا آیت کریمہ کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، حضرات محترم، یہ جو ہے 12واں پارہ ہے، صفحہ نمبر 217، آیت نمبر 61، سورہ یونس کے آیت پاک ہے۔ حضرات محترم، میں نے جو آیت کریمہ کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس آیت کریمہ کے تحت میں آپ کے سامنے کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں، کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرات محترم، یہ رجب المرجب کا یہ مقدس اور پیارا مہینہ چل رہا ہے۔ اسی رجب المرجب کے 22 تاریخ کو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جو ہے ہم تمام عاشقان رسول جو ہے، جو اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، وہ سب کے سب ان کے نام سے نظر و نیاز کا اہتمام کرتے ہیں، ان کے نام سے اپنے گھر پہ جو ہے کنڈے کی فاتحے کا انتظام کرتے ہیں۔ حضرات محترم، آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کون تھے۔ حضرات محترم، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی ظاہری زندگی میں مدینہ شریف میں مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے یہ حضرت جابر بن عبداللہ سے یہ وصیت کی تھی اور کہا تھا کہ اے صحابی، اے جابر بن عبداللہ، ہماری خاندان میں جو ہے ہمارے گھر میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو بہت ہی ہونہار ہوگا، بہت ہی اچھا ہوگا، بہت ہی مرتبے والا ہوگا۔ حضرات محترم، اور جب وہ بچہ دنیا میں آ جائے تو اس بچے سے میرا سلام کہہ دینا۔ حضرات محترم، اللہ کے رسول نے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جابر بن عبداللہ کے حق میں جو ہے دعا مانگی۔ آپ کی عمر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے طویل فرما دی، یعنی حضرت جابر بن عبداللہ کی عمر جو ہے بہت لمبی ہوئی۔ علماء فرماتے ہیں، کتابوں میں آیا ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ کی عمر اتنی لمبی ہو جاتی ہے کہ آپ جو ہے لاسٹ ٹائم میں آپ کی آنکھوں سے روشنی جو ہے ختم ہو جاتی ہے۔ آپ کا پوتا آپ کو پکڑ کر کے مسجد نبوی میں لاتا تھا اور نمازیں ادا کراتا تھا۔ آپ نمازیں ادا کر کے پھر جو ہے آپ اپنے پوتے کے ساتھ میں گھر واپس جایا کرتے تھے۔ حضرات محترم، ایک دن کیا ہوتا ہے، حضرت جابر بن عبداللہ مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، نماز سے فارغ ہو چکے ہیں، بیٹھے ہیں، آپ کتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت امام زین العابدین تشریف لے آتے ہیں۔ اور جیسے ہی حضرت امام زین العابدین تشریف لاتے ہیں کہ آپ جو ہے حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے کون ہیں، نواسے رسول ہیں، اور نواسے رسول ہیں۔ آپ زین العابدین کہتے ہیں ہاں میں نواسے رسول ہوں۔ اس کے بعد جو کہتے ہیں کہ آپ کے گودی میں یہ کون سا بچہ ہے، یہ کون سا بچہ ہے، یہ کس کا بچہ ہے؟ حضرات محترم، امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ یہ بچہ میرا بچہ ہے۔ حضرات محترم، جیسے ہی
इमाम ज़ैनुल आबदीन अपने बच्चे को ज़मीन पर उतारते हैं, फ़ौरन जो है हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला आगे बढ़ते हैं और उस बच्चे की पेशानी को चूम लेते हैं, हाथों को बोसा देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, पैरों को जैसे चूमने के लिए जो है झुकते हैं, फ़ौरन जो है अब वो छोटा सा बच्चा पीछे हट जाता है और ये कहता है कि आप तो सहाबी रसूल हैं, आप हमारे सामने जो है बुजुर्ग हैं, आप ऐसा मत करिए। हजरत मोहतरम तो हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला जो है कहते हैं कि ऐ बेटे, आपके नाना जान ने मुझसे ये वसीयत की थी कि मेरे ख़ानदान में एक ऐसा बच्चा पैदा होगा और आज मैंने उस बच्चे की ज़ियारत कर ली है, आज मैंने उस बच्चे को देख लिया है और उस बच्चे की पेशानी को भी चूम लिया है। हजरत मोहतरम वो कौन थे? वो इमाम ज़ैनुल आबदीन की गोदी में कौन थे जिनकी जो है पेशानी को बोसा हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला देते हैं, जिनके बारे में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। हजरत मोहतरम वो इमाम बाकर रजी अल्लाह ताला अन्हु थे। हजरत मोहतरम इमाम बाकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे जो है इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अब आइए चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपका सिलसिला नस्ब बताता हूँ, आपका जो है सिलसिला बताता हूँ। आपका जो है हज़रत अली के बेटे इमाम हुसैन और इमाम हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबदीन के बेटे इमाम बाकर और इमाम बाकर के बेटे इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत मोहतरम हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बचपने का ज़माना है। मदीना शरीफ में आप टहल रहे थे कि इतने में हातिम ताई का पोता आता है और कहता है कि ऐ बच्चे, तो बहुत ही होनहार मालूम होता है, तो बहुत ही अच्छे घराने का बच्चा मुझे महसूस हो रहा है, मुझे लग रहा है। ऐ बच्चे, तेरा नाम क्या है? तो हज़रत मोहतरम इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हातिम ताई के पोते से कहते हैं कि ऐ शख्स आने वाले शख्स, तो मेरा नाम पूछता है, तू बता कि तेरा नाम क्या है? तो वो हातिम ताई का पोता कहता है कि तू मेरा नाम पूछ रहा है, मैं तो जो है मेरे दादा जान इतने बड़े सखी थे, इतने बड़े अमीर थे कि गरीबों की मदद करने के लिए जो है फ़कीरों को देने के लिए, मोहताजों की मदद करने के लिए 10-10 दरवाजे खोल रखे थे। एक बार कोई मांगने वाला एक दरवाजे से आता था, उसको भी दिया करते थे। उसके बाद वही साइल, वही मांगने वाला, वही फ़कीर दूसरे दरवाजे पे अगर आ जाता तो मेरे दादा जान वहाँ से भी उसकी जो है मदद फरमाया करते थे। इसी तरह से अगर वो 10 दरवाज़ों पे आता तो 10 दरवाजे पर भी उसको जो है उसकी हाजत पूरा किया करते, उसको जो है मदद फरमाते, उसको मना नहीं करते। हजरत मोहतरम इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है हातिम ताई के पोते से ये बात सुन करके कहते हैं कि ऐ हातिम ताई के पोते, इस बखीली को, इस कंजूसी को तो जो है तारीफ में बदल रहा है। ये तारीफ नहीं है, बल्कि तेरे दादा इतने बड़े कंजूस थे कि जो है कोई मांगने वाला जब तेरे घर पे आता था तो एक दरवाजे पे इतना कम देते थे कि उसे दूसरे दरवाजे पे जाने की ज़रूरत पड़ती थी, और दूसरे दरवाजे से जब दिया करते थे तो दूसरे दरवाजे पे भी इतना कम देते थे कि उसकी जरूरत नहीं पूरी होती थी। तब वो तीसरे दरवाजे पे जाया करता था, और तीसरे दरवाजे पर भी इतना कम वो देते थे कि उसको चौथे दरवाजे पे जाना पड़ता, और चौथे दरवाजे पर वो इतना कम दिया करते साइल को कि उसे 5वें दरवाजे पे जाना पड़ता। 5वें दरवाजे पे भी उसे इतना कम दिया करते कि उसे 6ठे दरवाजे पे जो है जाना पड़ता। हज़रत मोहतरम इसी तरह से जो है वो इतना कम दिया करते कि उसको 10 दरवाज़ों का चक्कर लगाना पड़ता, 10 दरवाज़ों पे जाना पड़ता। लेकिन ऐ हातिम ताई के पोते, सुन ले, अगर तू मेरे बारे में जानना चाहता है, अगर तू मेरे बारे में पूछ रहा है, सुन ले कान खोल करके। मेरे नाना जान वो थे कि मेरी नाना जान की बारगाह में जो साइल एक बार आ जाता था, मेरे नाना जान उसको इतना दिया करते थे, इतना दिया करते थे कि दोबारा कभी
कभी उसको मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ा करती थी, दोबारा उसको कहीं किसी दूसरे के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ा करती थी। हज़रात मोहतरम, ये हैं इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके नाम से हम लोग आज जो है नज़र नियाज का एहतमाम किया करते हैं। हज़रात मोहतरम, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बचपने का ज़माना है, अभी आप छोटे ही हैं कि मदीना शरीफ के जंगल में आप लकड़ियाँ चुनने के लिए गए हैं, आप लकड़ियाँ चुन रहे हैं कि इतने में जो है इमाम मालिक बिन दीनार वहाँ रास्ते से गुज़रते हैं, और जैसे ही इमाम मालिक बिन दीनार उस रास्ते से गुज़रते हैं और उस बच्चे पर नज़र पड़ती है, दिल में ख़याल आता है कि लाओ इस बच्चे से सलाम कर लें, लेकिन फिर दिल एक कहता है कि अरे बच्चा ही तो है, छोड़ो नहीं सलाम करेंगे। हज़रात मोहतरम, हज़रत जो है मालिक बिन दीनार आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद दिल में ख़याल आता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम छोटे छोटे बच्चों को सलाम किया करते थे, अपने से छोटों को सलाम किया करते थे। वो कभी ये नहीं देखते थे कि मुझसे बड़ा है या छोटा है, सलाम में पहल किया करते थे। हज़रात मोहतरम, जब हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये मुबारक तरीक़ा जो है हज़रत मालिक बिन दीनार को याद आता है, तो हज़रत मालिक बिन दीनार वापस आ जाते हैं और उस बच्चे से सलाम करते हैं। वो बच्चा कौन था जो जंगल में लकड़ियाँ चुन रहा था? वो जो है हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। जैसे ही जो है सलाम किया है हज़रत मालिक बिन दीनार हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जो है सलाम करते हैं, फ़ौरन हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो है जवाब देते हैं, वालेकुम अस्सलाम या मालिक दीनार। हज़रात मोहतरम, जब आपने सलाम का जवाब दिया और सलाम के जवाब के साथ साथ आपका नाम भी लिया, तो हज़रत मालिक बिन दीनार ताज्जुब में पड़ जाते हैं और ये सोच में पड़ जाते हैं कि ये छोटा सा बच्चा, आज पहली बार मुलाकात हुई है, आज ये पहली बार मुझे देखा है और जो है इसको मैं भी नहीं जानता, ना ये मुझे जानता है, लेकिन मेरा नाम कैसे जानता है। हज़रात मोहतरम, जब हज़रत मालिक बिन दीनार उस बच्चे से पूछते हैं कि ऐ बच्चे, तू बता मेरा नाम तू कैसे जानता है, मेरा नाम तुझको कैसे पता चला है। हज़रात मोहतरम, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि ऐ मालिक बिन दीनार, जो है आप भूल गए आलमे अरवाह में हमारी रूह जो है पीछे थी और हमारे आगे आपकी रूह थी। आलमे अरवाह में मैं आपको पहचान गया था, आलमे अरवाह से मैं आपको जानता हूँ। हज़रात मोहतरम, जब हज़रत जो है इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये बात सुनी हज़रत मालिक बिन दीनार, तो समझ गए ये कोई बच्चा ऐसा वैसा नहीं है, बल्कि बहुत ही मर्तबे वाला है, बहुत ही होनहार बच्चा है। हज़रात मोहतरम, उसके बाद आप जो है मदीना शरीफ में हैं और मदीना शरीफ में मंसूर नाम का एक बादशाह था, वो मौजूदा वक्त का बादशाह था। वो मंसूर नाम का जो बादशाह था उसके दिल में हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में बहुत ही जलन वो रखता था, बहुत आपसे कुड़ता था, बहुत जलता था, इसलिए कि वो मौजूदा जो है बादशाह था, उसके बावजूद भी रियाया उसकी अदब व एहतराम नहीं किया करती थी, लोगों के दिलों में उसकी मोहब्बत नहीं थी। लेकिन हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत लोगों के दिल में कूट कूट कर भरी थी। हज़रात मोहतरम, इसी बात का उसे बहुत ज़्यादा गम था, तो उसने एक दिन एक प्लानिंग की, एक मंसूबा बनाया, एक जो है उसने साजिश रची कि जो है इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन शहीद कर दिया जाए। हज़रात मोहतरम, उसने अपने वज़ीर से बात की और वज़ीर से कहा कि एक जल्लाद को बुलाओ, और जल्लाद जब यहाँ महल में आ जाए तो हम इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपने महल में बुलाएंगे, और जैसे ही वो महल में दाखिल होंगे मैं अपना ताज उतार करके ज़मीन में रखूँगा, फ़ौरन जो है तुम जो है जल्लाद को इशारा करना, जल्लाद हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जो है शहीद कर देगा माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो वज़ीर जो है अपने राजा के कहने में वैसे ही प्लानिंग जो है पूरी अच्छी तरीके से तैयारी कर ली, और जो है हज़रत
जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाने के लिए जाता है, और जैसे ही हज़रत जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुला करके साथ में लेकर के आता है, फ़ौरन वो जो है मंसूर का जो है वज़ीर था, वो क्या देखता है कि जैसे हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है दरबार में दाखिल होते हैं, फ़ौरन बादशाह खड़ा हो जाता है। खड़ा होने के बाद जो है अपनी कुर्सी खाली कर देता है और हज़रत को अपनी कुर्सी पे बैठा देता है, खुद सामने जमीन पर हाथ जोड़ करके बैठ जाता है और कहता है, सरकार मुझे माफ करिए, और मैं इसलिए बुलाया हूँ आपको कि आप मुझे बता दें, किसी चीज की जरूरत हो तो हम आपकी जरूरत को पूरा कर दें। हजरत मोहतरम हजरत जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, नहीं नहीं, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, और अगर मुझे कोई चीज की जरूरत होगी, कोई चीज को मांगना होगा तो हम उस वहदहु ला शरीक से मांगेंगे, उस परवरदिगार से मांगेंगे, उस खल्लाके कायनात से मांगेंगे, तुझसे मेरी कोई जरूरत नहीं है। और मैं ये चाहता हूँ कि आज के बाद तू मुझे अपनी दरबार में कभी नहीं बुलाना। हजरत मोहतरम उसके बाद हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है मंसूर नामी बादशाह से इजाज़त लेकर के आप वहाँ से जो है निकल जाते हैं, आप बाहर चले जाते हैं। जब आप बाहर तशरीफ़ ले गए तो जो है वो जो है उनका मंसूर नामी का जो है वजीर था, वो कहता है कि ऐ बादशाह, जब हजरत अंदर तशरीफ लाए थे तो आप जो है आपका जो मंसूबा था वो एकदम बदल क्यों गया था, और आप कांप क्यों रहे थे, आप अपनी कुर्सी क्यों खाली कर दी थी, हजरत को अपनी कुर्सी पे क्यों बिठाल दिया था, और हाथ जोड़ करके सामने क्यों बैठ गए थे। वो मंसूर नामी बादशाह अपने वजीर से कहता है कि ऐ वजीर सुन ले, पहले तो मैंने मंसूबा बनाया था माज़ल्लाह कत्ल का, लेकिन जब हजरत दरबार में तशरीफ लाते हैं, जैसे ही अंदर दाखिल होते हैं, मैंने क्या देखा कि हजरत के साथ में एक बहुत बड़ा अजदहा सांप है, और वो अपने मुंह को खोले हुए है, वो अपने मुंह को फैलाए हुए है, और मुझसे कह रहा है कि ऐ मंसूर सुन ले, अगर मेरे हजरत को तूने तकलीफ पहुंचाने की जो है जुर्रत की, या तूने मेरे हजरत को तकलीफ पहुंचाया, तो तुझको तेरी जो है यहाँ पर दरबार में जितने तेरे आदमी हैं, तेरे जितने भी लोग हैं यहाँ पर, और तेरे दरबार को मैं निगल जाऊंगा, खा जाऊंगा। हजरत मोहतरम इसलिए मैं डर गया था, इसीलिए मैंने हजरत से माफ़ी मांग ली। हजरत मोहतरम ये कौन है? ये वही इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। हजरत मोहतरम मैं एक छोटा सा और वाक़या आप लोगों को बताना चाहता हूँ। हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीना शरीफ की गलियों में टहल रहे हैं, और मदीना शरीफ से निकल रहे हैं कि क्या देखते हैं, दो छोटे छोटे बच्चे और एक बूढ़ी माँ, एक ज़ईफ़ औरत जो है खड़ी रो रही है। वो बच्चे भी ज़ारो कतार रो रहे हैं, अपने आंखों से आंसू गिरा रहे हैं, वो बूढ़ी औरत भी रो रही है। जब हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन बच्चों को रोते हुए देखा, उस बूढ़ी औरत को रोते हुए देखा, आप करीब जब गए तो करीब में क्या देखा कि एक गाय मरी हुई पड़ी है। हज़रत मोहतरम जब आपने गाय को मरी हुई देखा तो आपने पूछा कि ऐ बच्चों क्यों रो रहे हो, ऐ बूढ़ी औरत क्यों रो रही है। हजरत मोहतरम वो बूढ़ी औरत जो है कहती है कि ऐ आने वाले शख्स, ये जो है गाय जो मरी पड़ी है ये मेरे बच्चों का सहारा थी, और इसी गाय के दूध से मेरे बच्चों का गुजारा होता था, इसी गाय के दूध से मेरे बच्चों की परवरिश होती थी, लेकिन आज ये गाय ख़त्म हो गई है, आज ये गाय मर गई है, मेरे बच्चों का सहारा ख़त्म हो गया है। हज़रत मोहतरम हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि ऐ बूढ़ी औरत तू क्या चाहती है, तू ये चाहती है कि ये जो है गाय दोबारा जिंदा हो जाए। वो औरत कहती है कि ऐ आने वाले शख्स, क्या आप मजाक कर रहे हो, क्या एक बार गाय मर गई तो क्या दोबारा जिंदा हो सकती है। हजरत मोहतरम हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है कहते हैं हाँ हाँ मरी हुई गाय जिंदा हो सकती है। फौरन आपने दुआओं के लिए हाथ को बुलंद किया और आपकी दुआ अभी मुकम्मल हुई थी, और मुकम्मल होने के बाद आपने पैर का ठोकर लगाया और कहा उठ जा अल्लाह के नाम से। फौरन जैसे ही हजरत
इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह ताला अन्हु पैर का ठोकर लगाते हैं, फौरन वो गाय जिंदा हो जाती है। हजरत मोहतरम तभी तो किसी शायर ने कहा है, निगाहे वली में वो तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी, निगाहे वली में ये तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। हजरत मोहतरम यही थे इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अब जहन में सवाल ये पैदा होता है कि हज़रत की पैदाइश तो जो है 22 रजब को नहीं है और हज़रत की जो है विसाल भी 22 रजब को नहीं है, फिर ये फातहा क्यों 22 रजब को होती है? तो हज़रत मोहतरम मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि इसाले सवाब करने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि वो विसाल की तारीख़ हो या पैदाइश की तारीख़ हो। आप अपने मरहूम को या किसी बुजुर्गाने दीन के नाम से अगर नजर नियाज का एहतमाम करना चाहते हैं तो वो किसी मौके पर कर सकते हैं, उसके लिए तारीख होना ज़रूरी नहीं है। नियतुल मोमिनु खैरुम मिन अमलिही इन्नमल आमालु बिन्नियाज। अपने वलियों के नाम से, अपने बुजुर्गों के नाम से, अपने मरहूमों के नाम से आप किसी भी वक्त किसी भी दिन आप अगर इसाले सवाब की महफिल करते हैं, इसाले सवाब करते हैं, अल्लाह तबारक व ताला के जो है दुआओं से, अल्लाह तबारक व ताला के करम से वो आपका इसाले सवाब उन बुजुर्गों को पहुँचेगा, आपके मरहूम को पहुँचेगा। हजरत मोहतरम और कुछ लोग ये कहते हैं कि इस 22 रजब को शिया लोग फातहा करते हैं, खारिजी लोग जो है कोंडे बनाते हैं या पार्टी करते हैं, खाना बनाते हैं, खाते हैं, खिलाते हैं। हजरत मोहतरम तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 22 रजब को जो है हजरत अमीर माविया का जो है विसाल हुआ था और हजरत अली के मानने वाले हैं ये शिया लोग, हजरत अली से बेपनाह मोहब्बत करते हैं शिया लोग। तो इसीलिए और हजरत अली और हजरत अमीर माविया से कुछ इख्तिलाफ था, कुछ मसाइल में, कोई बातों में जो है थोड़ा सा इख्तिलाफ हो गया था। इसी वजह से ये शिया लोग हजरत अमीर माविया के बुग़्ज़ो कीना में, हजरत अमीर माविया के हसद में, जलन में जो है आपके विसाल के मौके पर जो है ईद मनाते हैं, खुशी मनाते हैं और अच्छा खाना बनाते हैं, खिलाते हैं। हजरत मोहतरम लेकिन हमको इन शियाओं के तरीक़े पर अमल नहीं करना है, बल्कि इन शियाओं से हमको कोई लेना देना नहीं है, इनके काम से हमको कोई जो है मतलब नहीं है। वो अपना काम करें और हम अपना काम करें। हम अगर जो है 22 तारीख़ को अगर नज़र नियाज का एहतमाम करते हैं तो ये बुग़्ज़ो कीना में नहीं करते हैं, बल्कि अल्लाह के वलियों की मोहब्बत में करते हैं। और हम जो है वलियों से मोहब्बत करेंगे, हम अहले बैत अतहार से मोहब्बत करेंगे, हुजूर के ख़ानदान वालों से मोहब्बत करेंगे, हुजूर के नवासों से मोहब्बत करेंगे, उनके नाम से नज़र नियाज का एहतमाम करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमको दुनिया में भी कामयाब करेगा और उसका जो है सिला दुनिया में भी अता करेगा और कल मैदान महशर में भी उसका सिला अता करेगा। हज़रात मोहतरम मैं बस इतना ही आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि ये जो है हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से ये जो 22 रजब को फातहे का इंतज़ाम होता है, लोग नज़र नियाज का एहतमाम करते हैं। इस तारीख़ को आप भुलाने की कोशिश न करें, आप इस पर अमल करते रहें। आप 22 तारीख़ को नज़र नियाज का एहतमाम करते रहें और दूसरों को भी बताएं कि वो नज़र नियाज का एहतमाम करें, क्योंकि अगर आप आज जो है दुनिया में रह करके आज जो है अल्लाह के रसूल के नवासों से मोहब्बत करेंगे, उनके नाम से नज़र नियाज का एहतमाम करेंगे तो कल बरोज़े क़यामत उलमा इकराम फरमाते हैं, किताबों में आया है कि नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुसनहार ना होगा। उस आलम में जो है सारे उम्मती, सारे नबी जो है हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ढूंढ रहे होंगे, लेकिन हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मैदान महशर में उस शख्स को ढूंढेंगे, उन लोगों को ढूंढेंगे जिनके दिलों में जो है नवासे रसूल यानी हुजूर के आल की मोहब्बत कूट कूट के भरी होगी, जिन्होंने दुनिया में रह करके हुजूर के घर वालों के नाम से नज़र नियाज का एहतमाम किया होगा, हुजूर के जो है नवासों से मोहब्बत की होगी, हुजूर के नवासों के नाम से लंगर किया होगा, हुजूर के नवासों की मोहब्बत का दम भरा होगा, हुजूर के नवासों से बेपनाह मोहब्बत की होगी। हजरात मोहतरम मैं अपनी गुफ्तगू को बस मैं यहीं ख़त्म करता
کرتا ہوں۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ بیان کرنے میں قصدن سہون لفظاً کسی طرح سے کوئی غلطی صادر ہوئی ہو، مولا اپنے محبوب علیہ السلام کے صدقے و طفیل تمام غلطیوں کو معاف فرمائے، اور جو باتیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کی ہیں ان باتوں پر سب سے پہلے ہم کو عمل کرنے کی توفیق فرمائے، اس کے بعد آپ لوگوں کو توفیق فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔